तो सब लोग थोड़ा सा 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा अपने मन की माइंड को शांत करने का कोशिश करेंगे। तो सब लोग सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ। दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखो। थाइस के बाहर नहीं आना चाहिए। थाइस के ऊपर रखो और पाम फेसिंग अप। थाइस के ऊपर हाथ रखना है और पाम फेसिंग अप। आपके हथेली ऊपर की तरफ फेसिंग होना चाहिए। हम सिंगिंग बॉल्स साउंड थेरेपी, सिंगिंग बॉल्स की धुन में हम मेडिटेशन करेंगे। तो आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अपने आंख ये मन का द्वार है। आंख खुली रहेगी तो मन में हर प्रकार के विचार आते हैं। इसलिए आंख बंद होनी चाहिए और आपका ध्यान आपके सांसों के ऊपर रहना चाहिए। यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रीथ, how it's how you are inhaling and how you are exhaling। आप श्वास कैसे ले रहे हैं, आप प्रश्वास कैसे छोड़ रहे हैं। आपका मन पूरा आपकी श्वास सांस के ऊपर होना चाहिए। विचार आएंगे, विचारों को आने दो, लेकिन आप विचार के प्रति मत जाओ। विचारों को फॉलो मत करो, विचारों को छोड़ दो। धीरे धीरे विचारों का आना कम हो जाएगा और दो विचारों के बीच में का अंतर बढ़ता जाएगा। जैसे आपका अंतर बढ़ता जाएगा, कई बार 5 सेकंड के लिए, कई बार आधा मिनट के लिए, कई बार 1 मिनट के लिए, कई बार 5 मिनट के लिए, जैसे जैसे अंतर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आप ध्यान करते जाओ, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा, आपका ध्यान नो थॉट्स हो जाएगा, निर्वाण अवस्था। तो हम ध्यान शुरू करते हैं। यस यस यस, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। वेलकम रिको। सो लेट अस स्टार्ट आवर मेडिटेशन। सो sit straight, your spine should be straight।
Close your eyes. Your spine should be straight. Keep your both hands on your thighs, palm facing up. Close your eyes and focus on your breathing. Inhaling and exhaling. Inhaling and exhaling. Observe your inhaling. Observe your breath while coming in. Observe your breath while coming in. Observe your breath while going out. विचार मत करो, विचारों के पीछे मत जाओ. Don't follow your thoughts. Don't go with your thoughts. अगर विचार आए तो विचारों को छोड़ दो और वापस ब्रीथ के ऊपर आओ. If thoughts come, ignore it and come again on your breath. Observe your breath while coming in and going out. All your disturbing thoughts are going away. आपके सारे बुरे विचार दूर होते जा रहे हैं. आपके सारे बुरे विचार दूर होते जा रहे हैं. Your all tension is going far away. Your all tension going far away. ध्यान करते समय शरीर को हिलाना डोलाना नहीं है. Don't move your body while meditating. Your all body muscles are getting relaxed. Your all body muscles are getting relaxed.
Your mind is getting calm and relaxed. Your mind is getting calm and relaxed. आपका मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है। आपका मन बिल्कुल शांत। शरीर के सारे मसल्स एकदम रिलैक्स। शरीर के सारे मसल्स एकदम रिलैक्स जा रहे हैं। आने वाले और जाने वाले श्वास के साथ आपको रहना है। कोई भी विचार मत करो। अगर विचार आते हैं तो आने दो। विचार का पीछे मत जाओ। विचारों के पीछा मत करो। अगर विचार आए तो विचार छोड़ दो और वापस ब्रीदिंग पे फोकस करो। If thoughts come, ignore ignore it and come again on your breath. Don't move your body. शांत हो जाओ। Your soul and mind is getting relaxed. Your soul and mind is getting relaxed. Now bring your focus on your both feet. Your both feet are getting relaxed. Your both feet are getting relaxed. Now focus on your lower leg. Now focus on your lower leg. Your both lower legs are getting relaxed. Front side of the lower leg and back side of the lower leg are getting relaxed. Calf muscles are getting relaxed. Now focus on your knees. Now focus on your knees.
Your knees are getting relaxed. Your knees are getting relaxed. All muscles of your knees are getting relaxed. Now focus on your thighs. Now you focus on your thighs. Your both thighs are getting relaxed. Your both thighs are getting relaxed. All muscles of your thighs are relaxed. Now bring your mind on your lumbar. Bring your mind on your lumbar. All muscles of your lumbar are relaxed now. All muscles of your lumbar are relaxed now. Don't move your body. Don't move your body. Maximum stay in still position. Now focus on your chest and abdomen. अभी पेट और छाती पे अपना ध्यान केंद्रित करो. Chest and abdomen are getting relaxed. Are all muscles of chest and abdomen are getting relaxed. Now focus on your back. Now focus on your back and whole spine. Your back and spine are getting relaxed. Your back and spines are getting relaxed. Now focus on to your both hands and fingers. Focus on both hands and fingers. अपने हाथ और उंगलियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो. Your hands and fingers are getting relaxed.
Your hands and fingers are getting relaxed. Now focus on to your shoulder. Focus on to your both shoulders. All muscles of your shoulders are getting relaxed. All muscles of your shoulders are getting relaxed. Now focus on your neck. Focus on to your neck, front side of the neck and back side of the neck. अपने गर्दन पे आपका मन एकाग्र करो। अपने गर्दन पर अपना मन एकाग्र करो। आपके गर्दन के सारे स्नायु एकदम हल्के होते जा रहे हैं। आपके मन आपके गर्दन के सारे स्नायु एकदम शिथिल होते जा रहे हैं। आपके गर्दन के सारे मसल्स एकदम हल्के हो गए। अभी आपके फेस के ऊपर आपका मन एकाग्र करो। आपके फेस के ऊपर आपका मन एकाग्र करो। आपके चेहरे के सारे मसल्स एकदम हल्के हो गए। आपके चेहरे के एकदम सारे मसल्स एकदम रिलैक्स हो गए। आपके चेहरे के सारे मसल्स एकदम आपका फोrehead, आपके आंखें, आपकी नाक, आपका मुंह, आपके गाल, आपके कान एकदम हल्के हो गए। आपका पूरा चेहरा, आपका पूरा फेस एकदम हल्का हो गया है। Now you are going to focusing on your head. All muscles of your head are getting relaxed. सर के सारे मसल्स एकदम हल्के हो गए।
सर के साथ एकदम हल्के होंगे। सर के साथ एकदम रिलैक्स। आपके सारे बुरे विचार दूर चले गए। आपके सारे बुरे विचार एकदम दूर चले गए। आपकी सारी चिंताएं दूर चले गए। आपकी सारी चिंताएं दूर चले गए। आपके सारे तनाव दूर चले गए। शांत जाओ। शांत जाओ। शांत शांत
शाम। शिवोऽहं 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 शिव स्वरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपो नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपो ब्रह्म स्वरूपो ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दं शांत हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। शांत शांत। Now come to the body awareness. अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाओ। कम टू द बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाओ।
जो जगह पे बैठे हैं, जो रूम में बैठे हैं, वो जगह के प्रति, वो रूम के प्रति जागरूक हो जाओ। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाओ। मूव योर फिंगर्स एंड टोज। मूव योर फिंगर्स एंड टोज। आंखें नहीं खोलना है। रब योर हैंड्स। रब योर बोथ हैंड्स। टच योर palm to your eyes, to your face, to your chest, to your abdomen, to your thighs, to your lower leg, and slowly open your eyes. कैसे लगा ध्यान में? राइट ऑन चैट बॉक्स। ओके, अब हम क्रिया योगा की तरफ बढ़ेंगे। तो क्रिया योगा ये बहुत बड़ी जर्नी है। हम वो पाथ के ऊपर बहुत धीरे धीरे चलेंगे। सो आप अपने सारे परिवार को भी बिठा सकते हैं सेशन में। सारे परिवार को बिठा सकते हैं ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो क्रिया योगा में सबसे अहम बात है ये ब्रीदिंग। आपकी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए? सबसे बड़ा रिश्ता है हमारा ब्रीदिंग। सोल एंड माइंड एंड बॉडी। हमारा जन्म लेते ही अपना पहला जो ब्रीदिंग से अपना ये अर्थ प्लेनेट का जो अस्तित्व शुरू होता है, अपना लाइफ शुरू होता है। और ब्रीद इन के लास्ट ब्रीद आउट, लास्ट ब्रीद आउट से अपना हम ये संसार से विदा लेते हैं। ये ब्रीदिंग, फर्स्ट ब्रीदिंग और लास्ट ब्रीद आउट, उसके बीच में हम कई अगणित ब्रीद लेते हैं, श्वास लेते हैं, प्रश्वास छोड़ते हैं। हमें पता नहीं है। आपने अभी तक गिना है क्या कितने ब्रीदिंग लिए आपने जन्म से? अगणित ब्रीदिंग है। लेकिन ये ब्रीथ कैसा लेना है, तो हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक आपको
यजुर्वेद का मैं एक श्लोक बोलता हूँ, श्लोक सुनाता हूँ। यजुर्वेद का एक श्लोक है। प्राणो विराट, प्राणो विराट, प्राणो दृष्टा, प्राण ही सर्व उपासते। प्राणो विराट, प्राणो दृष्टा, प्राण ही सर्व उपासते। प्राणो ही सूर्य चंद्रमा, प्राणो ही सूर्य चंद्रमा, प्राण माहु प्रजापति। तो यह श्लोक है यजुर्वेद का, और इस श्लोक में साफ पता चलता है कि किस तरह प्राण की महिमा बताई गई है। प्राण को दृष्टा भी बताया गया है, प्राण को विराट भी बताया गया है, उपासनी भी बताया गया है, सूर्य चंद्रमा, यहाँ तक कि प्राण को ही प्रजापति की उपमा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राण की महत्ता अपने आप में कितनी ज्यादा है। मित्रों, अधिकतर आपने देखा होगा, सामान्य रूप से लोग ना श्वास प्रश्वास इसी को समझते हैं कि बस प्राणायाम हो गया, और इन श्वास का नियंत्रण, सांसों का नियंत्रण, इसको करने के लिए अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इस तरीके की जो छोटी छोटी प्राणायाम, ये सारे है, इन सारों को करके उनको लगता है कि बस अब प्राणायाम यही है। लेकिन सही मायने में प्राणायाम सिर्फ इतना ही नहीं है। श्वास का नियंत्रण सिर्फ इतना प्राणायाम नहीं कहलाता है। प्राणायाम का अर्थ होता है कि जो हमारी जीवन शक्ति है उसका विस्तार करना, अर्थात प्राणों का अपान में और अपान का प्राणवायु में हवन करना या विलय करना, ये कहलाता है प्राणायाम। तो हम प्राणायाम को पूरा अच्छे से डिटेल में जाएंगे। तो इसके डिटेल में जानने के लिए हमें जाननी पड़ेगी तीन मुख्य मुख्य बातें। पहली बात, श्वास क्या है? कोई बता सकता है श्वास क्या है? इसकी गति क्या है? श्वास की गति क्या है? और इससे कोई भी सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो यस, आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं आपके ब्रीथ के ऊपर नियंत्रण लाके। प्रॉपर ब्रीदिंग, देर आर द मेनी ब्रीदिंग टेक्निक्स, so you can achieve many siddhis. So और दूसरा क्या क्या है? दूसरा, प्राण क्या है? इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं? प्राण का विस्तार करना है आपको। बस आपने जन्म लिया, अपने बचपन से बड़े हो गए, शादी, काम धंधा किया, पैसा कमाया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हो गए और मर गए, इसके लिए हम ये अर्थ प्लैनेट में आए क्या? हाँ गुरुमत जी, गुरमीत सिंह जी, इसके लिए हम अर्थ प्लैनेट में आए क्या? बस जन्म लिया, पूरा बचपना, बचपना से जवानी से बाद में बुढ़े हो गए और मर गए, यही यही लाइफ के लिए हम आए क्या? हमारा जो बर्थ मकसद है ना, बहुत बड़ा है। You have to achieve your goal. You have to go to the moksha. आप कितने बार ये अर्थ प्लेनेट में आएंगे? कितना कर्म भुगतने के लिए आएंगे?
तो और प्राण का ये तीसरा पॉइंट है, प्राणायाम से श्वास और प्राण दोनों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। श्वास और प्राण ये दोनों को कैसे एक साथ जोड़ना है, या एक दूसरे में कैसे घुल सकते हैं प्राण और श्वास, या यूं कहे कि प्राण और श्वास आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो ये सारी बात हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वास क्या है। श्वास के लिए आप देखेंगे, हम जो श्वास लेते हैं, जो वायु लेते हैं, या कहे जो ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर उसके बाद जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी कि इनहेलेशन श्वास और बाहर निकलना एक्सहेलेशन प्रश्वास। इनहेलेशन को हम हिंदी में श्वास बोलेंगे और एक्सहेलेशन को हम हिंदी में प्रश्वास बोलेंगे। तो ये जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, यही हमारा श्वास कहलाती है। तो जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायु के साथ, वो हमारे ट्रेकिया लंग्स में होती हुई हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम प्रश्वास के साथ यानी कि एक्सेलन के साथ बाहर निकलते हैं। तो ये तो हो गई श्वास की लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। अब ये भी आप देखेंगे कि जो हम श्वास भी लेते हैं ना, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से श्वास लेता है। आपको पता है, आप जो श्वास लेते हैं वो आपकी बीवी वैसे ही श्वास लेती है क्या? आपके बच्चे वैसे ही श्वास लेते हैं क्या? नहीं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग श्वास है। आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं बहुत ऊपरी सतही तौर पर श्वास लेते हैं, एकदम शैलो ब्रीदिंग, ऊपरी सतह पर। और उनको बड़ा गुस्सा आता है जो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हमेशा ऊपरी सतह के ऊपर श्वास लेते हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत डिप्रेशन में आते हैं ये लोग। बहुत जल्दी, मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब कि बस सांस लिया और छोड़ा, बहुत तेजी तेजी, ऊपर के ऊपर सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया और छोड़ा। तो क्या होता है, जो लंग्स हमारे जैसे तीन पार्ट है, तीन, अगर हम बात करें तो ऊपर का हिस्सा लंग का, बीच का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, थ्री लोब्स है लंग के, थ्री लोब्स है। तो ऑक्सीजन कहां कहां तक पहुंचती है ज्यादातर? तो अगर हम सिर्फ ऊपर के पार्ट को यूज कर पा रहे हैं, तो हमारी जो ब्रीथ है वो बहुत तेज 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 होती है, और हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर हम ऊपर ब्रीदिंग करते हैं, जो लोग ऊपर ब्रीदिंग करते हैं, तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दूसरा, अगर हम अपने लंग के बीच के हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचा पा रहे हैं, तो हम थोड़ा, कभी कभी गुस्सा भी आएगा, लेकिन कभी कभी हम काम डाउन भी रहेंगे। मतलब मिक्स सा नेचर रहता है। लेकिन जिसका ऑक्सीजन का लेवल पूरे लंग्स को कंप्लीट करता है, एकदम नीचे की पार्ट तक, एकदम नीचे का लोब तक, पूरे नीचे की लंग्स, पूरे लंग्स को कंप्लीट करता है, नीचे तक जाता है। तो जैसे हम कहेंगे नीचे तक जाने का मतलब है
कि जो हमारा डायाफ्राम होता है, तो वो हमारे मणिपुरक चक्र के पास में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जिससे कहते हैं तादेन, तांडेन। ओके, न साइलेंट है, हम तादेन बोलेंगे। ओके, तो हम अगर हम उस श्वास को तादेन के भाग तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारा श्वसन सबसे गहरा होगा और हमें बिल्कुल कूल डाउन रहते। गुस्सा कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब बात आती है कि हम पता कैसे करें कि हमारा जो श्वसन हम कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, वो हम कैसे ले रहे हैं। सुपरफिशियल कर रहे हैं, मिडल लेवल पर कर रहे हैं, या फिर तादेन पॉइंट तक कर रहे हैं। उसको आप चेक करने के लिए क्या कीजिए, तेजी तेजी से सांस लीजिए। ले लो, तेजी तेजी सांस ले लो। तेजी तेजी से सांस लेना शुरू कर दीजिए। अगर आपको सांस लेने में कंधे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे, ये कंधे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे, तो आप समझे कि आपका जो श्वसन प्रक्रिया है वो बहुत सुपरफिशियल, यानी आपको गुस्सा बहुत आता है और आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो श्वास है वो सिर्फ लंग के अपर पार्ट को ही प्रभावित कर पा रही है। लेकिन अगर तेजी से सांस लेते समय अगर आपका चेस्ट अप डाउन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका लंग्स का मिडल जो लेवल है वहां तक कंप्लीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सांस नीचे तक नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी, लेकिन ज्यादातर मध्य भाग तक ही रहती है। और अगर सांस लेने पर पेट अप डाउन हो रहा है, ले लो सांस, सांस ले लो, आपका पेट अप डाउन हो रहा है क्या, देखो। अगर सांस लेने में आपका पेट अप डाउन हो रहा है, तो आपका, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे, आपने देखा है ना, आपके घर में छोटे बच्चे रहेंगे या बाजू में रहेंगे। हाँ, छोटे बच्चे अगर सोते और सांस लेते, तो पेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो तादेन पॉइंट तक सांस पहुंचती है। तो तादेन, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मणिपुरम चक्र, मणिपुरम चक्र के पास एक सेंट्रल पॉइंट होता है। तो यहां से सांस अगर हम वहां तक ले जाते हैं, एक्चुअली सांस तो हमारे डायाफ्राम तक ही जाती है, लेकिन डायाफ्राम नीचे प्रेस होता है, तो वो मणिपुर चक्र के आसपास के एरिया को भी प्रभावित करता है। तो जब वहां तक हम पहुंचाते हैं, ये सांस को वहां तक पहुंचाते हैं, मणिपुरम चक्र तक, उसका जो आज आजू बाजू का एरिया प्रभावित करते हैं, तो सांस जो है वो हमारे लंग्स के तीनों भाग में पहुंचती है, अपर, मिडल और लोअर। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलता है और सांस गहरी होती जाती है, धीमे धीमे, और लंबी सांस होती जाती है, धीमी, लंबी और गहरी सांस होती जाती है, धीमे धीमे। धीरे धीरे क्या होता है कि हम सांस को जो ज्यादा गहराई तक ले जाएंगे, ज्यादा गहराई से बाहर छोड़ेंगे, तो हमारी जो काउंटिंग है वो कम होती जाएगी। अब काउंटिंग से यहाँ यहाँ पर क्या मतलब है, क्या काउंटिंग है। आप जानते होंगे कि एक
एक मिनट मिनट में हम 13 से 15 बार के आसपास सांस लेते हैं। हम मनुष्य 13 से 15 बार हम सांस लेते हैं। इस हिसाब से अगर गिना जाए तो हम पूरे 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हैं। अब अगर 21,600 सांसों को, या हम यूं कहे कि एक मिनट में 15 या 13 सांसों की जगह हम धीरे धीरे कम करते जाए, 12, 11, 10, 9, 8, ऐसे सांसों की काउंटिंग अगर हमारी कम होती जाएगी तो हमारी आयु अपने आप बढ़ती जाएगी। क्योंकि ईश्वर ने हमें उम्र दे के नहीं भेजा है। ईश्वर ने नहीं बोला जा बच्चा तुम इतने उम्र में जियो, दूसरे को बोला जा तुम इतने उम्र में भी जियो। ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमें कोई उम्र दे के नहीं भेजा है। ईश्वर ने हमें सांस दे के भेजा है, और वो सांस आप कैसी भी यूटिलाइज कर पाएंगे, जैसे भी यूटिलाइज कर पाएंगे आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इस 21,600 शास्त्रों को 24 घंटे में 21,600 शास्त्रों को हम कम खर्चा करेंगे तो उतने ही हम ज्यादा दिन तक अपने जीवन को, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और इस काउंटिंग के हिसाब से आप देखेंगे जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी है, सबका जीवन सांसों के हिसाब से चलता है। जो जितने तेजी से सांस लेता है उनकी उम्र उतने ही कम होती है। आप ऑब्जर्व करो आपके आजू बाजू में जीव जंतु, पशु पक्षी, जो जितना धीमा सांस लेता है उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि खरगोश, ओके, खरगोश है, वो कम से कम लेता है मिनट में 35 बार सांस, 35 या 38 मान लीजिए। और उसकी जो उम्र है ना वो 8 वर्ष है। उसी तरीके से बंदर लेता है 32 बार, तो उसकी उम्र होती है 10 साल। जो डॉग है, कुत्ता है, वो 29 बार सांस एक मिनट में है, तो उसकी उम्र होती है 12 से 15 साल। घोड़ा सांस लेता है 19 बार, तो उसकी उम्र होती है 25 वर्ष। मनुष्य, हम लोग जैसे जैसे मैं बता चुका हूं 13 से 15 बार हम सांस लेते हैं पर मिनट, तो हमारी उम्र लगभग लगभग 100 साल। अभी 100 साल कोई जीता नहीं है। ये अभी सांस लेने की प्रक्रिया बहुत रैपिड हो गई है हमारे, ओके। बहुत इसके कारण है गुस्सा, टेंशन, एंजाइटी, ओके। तो तो हम 13 से अगर 15 ये एवरेज में अगर सांस लेता है तो हमारी उम्र लगभग 100 साल होती है, उसके आसपास हो जाती है। आपको मालूम है सांप, सांप है जो स्नेक है, वो कितने बार सांस लेता है? सांप सांप लेता है 8 बार सांस, तो उसकी उम्र होती है 1,000 साल। आपको मालूम है सांप की उम्र 1,000 साल रहती है। और टॉर्टाइज, कछुआ कितना बार लेता है? कछुआ लेता है सिर्फ 5 बार, एक मिनट में सिर्फ 5 बार कछुआ सांस लेता है, और उसकी उम्र है, हो जाती है लगभग 2,000 साल। कछुआ का लाइफ स्पान 2,000 साल है, समझे? तो आप समझ सकते हैं कि
किस तरह से सांस कम लेने से हमारी उम्र ज्यादा हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे, जो सांस की बात हो गई कि सांस अगर आप कम लेंगे, लंबी और गहरी लेंगे, तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके आप में उम्र बढ़ेगी और आप निरोगी रहेंगे। अगर आपकी सांस जो है वो उंगुल कम होती है, उंगुल कम होती है, उंगुल का मतलब है ये उंगुल, ओके, ये उंगल का मतलब है उंगल। ये जैसे कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो लगभग 12 उंगल तक, चार चार आठ और चार 12, ओके, 12 उंगल। उंगल का मतलब होता है नाक से अगर आप काउंटिंग करेंगे, हाँ, तो आपकी हवा कहाँ तक जाएगी, हाँ, नाक से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो वैसे ही, जैसे ये हो गया आपका एक, एक दो तीन चार, 4 उंगल, ये हो गया 8 उंगल, और ये हो गया 12 उंगल, है ना। तो इस तरीके से जब हम सांस छोड़ते हैं तो लगभग नॉर्मली 12 उंगल तक बाहर आती है, श्वास बाहर आती है। और जब हम सांस लेते हैं तो 10 उंगल तक अंदर जाती है। तो 10 उंगल अंदर की लेंथ है सांस की, और 12 उंगल बाहर की लेंथ है। तो जैसे जैसे हमारी श्वास धीमी और गहरी होती जाएंगी तो क्या होगा, तो हमारा ये जो उंगल है वो कम क्यों होती जाएगा, क्योंकि हम तेजी से लेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, यानी कि ज्यादा उंगल हो गया। लेकिन जब हम जितना धीमे धीमे छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो उतनी वो उंगल धीमे धीमे जाएगी। तो यहां से हवा चली गई, यहां से हवा में चली गई, नीचे ज्यादा तक नहीं जा पाएगी। अगर धीरे धीरे आप सांस लेंगे, धीरे धीरे आप प्रश्वास छोड़ेंगे, तो आपकी उंगल कम होती जाएगी। तो मतलब यह है कि सांस जब हम धीमी, लंबी और गहरी लेते हैं, हमारी उम्र भी बढ़ती है, हमारे प्राण का बैलेंस होता है, लयबद्धता आती है, और हमारा जो उंगल है वो कम होता चला जाता है। और जितना उंगल कम होता जाएगा, आपके अंदर उतनी ही सिद्धि आती जाएगी। आप सिद्धि चाहते हैं, ये तो सिद्धि, ये बाय प्रोडक्ट है। सबसे हमें जो पाना है वो शांति, वो मोक्ष पाना है। ये सिद्धि तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगी जब आप, आपके जो सांस के ऊपर संयम मन हो जाएगा, संयम हो जाएगा, तो सिद्धि तो अपने आप आएगी। लेकिन ये सिद्धि क्या है, यह बात बहुत कम लोग को पता होगी कि जितना हम सांस को कंट्रोल करेंगे, लयबद्ध करेंगे, जितना ही हम उसको, उसकी जो लेंथ है उसको कम करते जाएंगे, उसकी उंगल वो कम करते जाएंगे, और सांस को डीप और गहरा और लंबा करते जाएंगे, उतनी हमारे अंदर सिद्धियां आती जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी उंगल कम करने से कौन सी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती है। यस डियर फ्रेंड, आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। बस अपने सांस के साथ रहिए, अपने अपने ब्रीथ को करेक्शन कीजिए।
तो क्या सिद्धियां प्राप्त होती है, कौन सा? तो अगर आपने एक एक उंगल तक कम किया, 12 उंगल है अपना, 12 उंगल तक सांस चलते हैं। अगर आपने एक उंगल तक कम किया तो आपके अंदर आ जाएगी निष्कामता। निष्कामता। तो 2 उंगल कम होने से आनंद आ जाएगा, आनंद। 3 उंगल से आप में आ जाएगा कवित्व। 4 उंगल से आप कुशल वक्ता बन सकते हैं। आप अच्छी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस हो सकते हैं। 5 उंगल कम होने से दूरदर्शिता आती है। 6 उंगल कम होने से आकाश गमन करना सीख सकते हैं आप। अगर 6 उंगल कम हो गया तो आप आकाश गमन करना सीख सकते हैं। और 7 उंगल से मन के वेग से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। 7 उंगल से। तो 7 तो 8 उंगल से आप अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि के दाता आप। 9 नव निधि या आपकी उंगल कम करने से होती है। ओके। अष्ट सिद्धि 9 उंगल से, नौ नवनिधि आपकी उंगल से कम होती जाएगी। और 10 उंगल कम करेंगे तो आप किसी भी प्रकार के 10 रूप धारण कर सकते हैं। इसको कहते हैं 10 मूर्ति सिद्धि। और अगर आपने आपने 8 उंगल कम किया तो आपके अंदर अष्ट सिद्धियां आएगी। 9 उंगल कम किया तो नवनिधि। आपने अपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अगर आपने 11 उंगल कम किया, आपने 11 उंगल कम किया तो आप छाया रहित हो जाएंगे। आपकी छाया ही नहीं पड़ेगी। कितने भी धूप में जाओ, आपकी छाया ही नहीं पड़ेगी। आप छाया रहित हो जाएंगे, यानी कि आपकी छाया ही नहीं बनेगी। और अगर आपने 12 उंगल कम किया, पूरा 12 का 12 उंगल कम किया, आपका आपका ये जो ब्रीदिंग ही नहीं रहा, ब्रीद आउट, ये जो आप जो ब्रीद आउट करते हैं वो कुछ रहा ही नहीं। अगर आपने 12 उंगल कम किया तो आपकी भूख प्यास इन सब से आप परे हो जाएंगे। और आप जो कहना चाहिए बिल्कुल महात्मा संत और ऋषि मुनियों की श्रेणी में आने लग जाएंगे। क्योंकि हम 12 उंगल तक तो हम सांस बाहर छोड़ते हैं। और जब वो 12 उंगल ही कम हो गया तो यानी कि सांस के बिना आप जी सकते हैं। आपको मालूम है, मैं जब महावतार बाबा जी के क्योज में जाता हूँ, वहाँ जो द्रोणागिरी जो पर्वत है, वहाँ द्वाराहट, हाँ, हिमालय में। तो वहाँ ऐसे बहुत से साधु मैंने देखे। और उनका उम्र तो अगणित है। कई साल साधु 5 साल के उम्र के हैं, कभी 5,000 साल के हैं। कई साधु 10,000 साल के हैं। कई कई साधु तो उनको 50,000। और वो जो दिखते हैं एकदम छोटे बच्चे जैसे, 18-20 साल। ऐसा ऐसा अनुमान कोई लगाते वो 18-20 साल के होंगे। लेकिन उनकी जो उम्र है वो अगणित है।
कि कैसे वो ब्रीदिंग ही नहीं करते। ओके, जितना, इसलिए मैं दोस्तों आपको कहता हूं, जितना आप कम ब्रीदिंग करेंगे उतना आप ज्यादा जिएंगे, उतना आप निरोगी जिएंगे। ये जो ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज, ये कैंसर, ये क्या है? ये फिजिकल बॉडी का है। तो आप ये बॉडी नहीं है, आप बॉडी है क्या? हाँ गुरमीत जी, ये गुरमीत, ये जो नाम है ये बॉडी को दिया है, तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ गुरमीत जी, आप समझो 50-60 साल के रहेंगे, आप 50-60 साल के रहेंगे। ये 50-60 साल है, ये किसका एज है? ये बॉडी का एज है। तो आपका एज कितना है? तो आपका एज कितना है? पता नहीं, अगणित। हाँ, ये आप ये नहीं कहना, आप ये आत्मा है। यू आर सोल बीइंग, आप सोल है, आप आत्मा है। आपका एज, आप कोई भी आत्मा का एज बता नहीं सकता है। तो एक तरीके से ये हो गई बात। तो इस प्रकार से अगर हम अपने श्वास को लंबा, गहरा और बिल्कुल धीमे धीमे, धीमे धीमे करेंगे, तो आस्ते आस्ते उसकी उंगल कम होती जाएगी और गहरा अंदर तक धीरे धीरे जाती है। मतलब जिस लय में आप जाए उस लय में बाहर आनी चाहिए। जो लय में, जो फ्रीक्वेंसी में श्वास अंदर जाती है, वो फ्रीक्वेंसी में आप बाहर आना चाहिए। लयबद्ध बहुत जरूरी है, जिसे हम रिदमिकली कहते हैं ना, रिदम, एक रिदम बहुत जरूरी है। एक रिदम, सांस की जो रिदम, जितने स्लो में आपने लिया है उतने ही स्लो में आपकी बाहर आना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करो। जितने स्लो आप ब्रीथ करेंगे उतने ही स्लो आप ब्रीथ बाहर लाएंगे। स्लो। ओके, ऊपर नीचे बिल्कुल इन आउट इक्वल होना चाहिए। तो इसे कहते हैं लयबद्ध श्वास। तो जब आप लयबद्ध श्वास लेंगे तो आपका क्या क्या होगा? आपकी जो आयु है वो बढ़ेगी। पहले आपको, आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा, आप निरोगी रहेंगे, आपका मन शांत होगा, और आपके अंदर ऑटोमेटिक, आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाएगी। तो जब श्वास से इतने फायदे हैं, तो आप आगे सोचिए प्राण का क्या क्या हाल होगा। क्योंकि जो प्राण है वह श्वास से ही डिपेंड करता है। अगर आपकी श्वास ही नहीं चलेगी तो प्राण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो प्राण है वह श्वास से ही डिपेंड करता है। प्राण एक अलग चीज है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है। अब उस ऑलरेडी है को, उसका विस्तार करने के लिए हमें श्वास की जरूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं प्राण के बारे में, कि प्राण क्या है और श्वास से उसका विस्तार कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम।
तो प्राणायाम यानी भस्त्रिका करना, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना, ये प्राणायाम नहीं है। ये प्राणायाम है योगिक ब्रीदिंग। तो अब बात करते हैं प्राण की। और प्राण जो है वह ऑक्सीजन वायु या श्वास से बहुत सूक्ष्म है। और इसकी सूक्ष्मता की वजह से और हमारे शरीर में इसकी क्रियाशीलता की वजह से वो हमको हम 5 पार्ट में तो प्राण को डिवाइड करते हैं। इसके लिए कहा भी जाता है एकको अहम बहुशाम। तो जैसे हमारे शरीर में तंत्र उपनिषद के हिसाब से हमारा शरीर जो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर जो हमारा ये जो शरीर है, हमें जो दिखाई देता है, हम कहेंगे स्थूल शरीर। जो सबसे जो हमें दिखाई देता है, हम एक दूसरे को देखते हैं, वो उसको कहेंगे स्थूल स्थूल शरीर। और इसके अंदर आता है वो सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है वो हमारा कारण शरीर। कारण शरीर। तो जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये बनता है अन्नमय कोश से। जो सूक्ष्म शरीर है, सॉरी, ये जो स्थूल शरीर है, सॉरी, स्थूल शरीर है, ये बनता है अन्नमय कोश से। इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, जो मिडल पार्ट समझ लीजिए शरीर का, जो बनता है 3 कोश से। कौन से कोश है? मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश, जो सूक्ष्म शरीर है। इसके बाद तीसरा शरीर आता है, तीसरा हमारा आता है कारण शरीर। वो बनता है हमारा आनंदमय कोश से। आनंदमय कोश। और इन 5 कोश के अंदर या इन तीनों शरीर के अंदर लास्ट में रहती है अपनी आत्मा, सोल। तो जो ये हमारे प्राण है, ये हमारे पूरे शरीर में अलग अलग कार्य के लिए 5 भागों में डिवाइड है ये प्राण। तो सबसे पहले अगर गर्दन के ऊपर तक जो का जो भाग है, वहां तक रहती है उदान वायु। उदान वायु। ओके। उसके बाद जो हमारा चेस्ट एरिया है, जो हमारा हार्ट चक्र है, वहां पे रहता है अनाज चक्र के आसपास का ये पूरा एरिया है। यहाँ पे रहती है हमारी प्राणवायु। प्राण या प्राणवायु एक ही बात है। उसके बाद जो हमारा स्टमक एरिया है, हमारा पेट है, जो हमारा मणिपूरक चक्र के आसपास का एरिया है, वहां पर रहती है समान वायु। समान वायु। और उसके नीचे स्वादिष्टान के नीचे की तरफ जाने पर सारी आती है अपान वायु। अपान वायु का कार्य होता है सारा एक्सक्रीट करना, सारे सारे डिस्पोज करना, एक्सक्रीट करना, जो हमारा मलमूत्र, इन सबको बाहर निकलना। समान वायु का कार्य होता है क्योंकि वो हमारे पेट के आसपास के सारे एरिया में होती है। इसका कार्य होता है समान, जो हमारा डाइजेशन है, इससे रिलेटेड जो भी पेट के अंदर जो भी चीजें है, उन सबको कंट्रोल करना, समन्वय। उसके कार्य को कंट्रोल करना
उसको प्रॉपर तरीके से चलाना, मतलब यह कह सकते हैं छाती में हार्ट है, लंग्स है, यहाँ पर काम करती है प्राणवायु, और इसके ऊपर उदान वायु। इसके अलावा जो पांचवी वायु है वो व्यान वायु, जो हमारे पूरे शरीर में, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे में चल रहा है, पूरी वो हमारे पूरे शरीर में घूम रही है, व्यान वायु। तो वो व्यान वायु। तो इस तरीके से ये जो वायु है वो हमारे शरीर में काम करती है। यह हमारे शरीर में काम करती है पांच प्राण, पांच वायु, पांच प्राण। और इन पांच प्राणों में कहीं भी कोई भी छोटा सा भी अवरोध होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई कॉन्ट्रावेक्शन होता है, कोई भी इंटरफेरेंस होता है किसी भी तरीका का, तो पांच और उपप्राण है जो इनकी सहायता करते हैं। ये जो पांच मुख्य प्राण है और पांच उपप्राण है, जो ये पांच मेन मुख्य प्राण की सहायता करते हैं, वो भी पांच है। ये नाग उपप्राण, नाग, कुर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त, ये पांच उपप्राण है। ये पांच उपप्राण है जो इन प्राणों की सहायता करते हैं। जो कभी छींक आना, जैसे कभी छींक आना, पलक झपका, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे उपप्राणों के काम होते हैं। और उपप्राण में जो धनंजय है, ये धनंजय धनंजय उपप्राण, उसका कार्य होता है मरने के बाद जब हम मरते हैं, मरने के बाद जब बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं इसमें, इसमें से उसके बाद धनंजय रह जाता है। उपप्राणों में ये जो डेड बॉडी में जो धनंजय उपप्राण है वो रह जाता है, जो कि हमारे शरीर को पूरा अपघटन करता है। ओके, उसको सड़ा लेता है, उसको डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय पूरा करना, उसको बदबू आने लगती है। वो किसी वजह से, ये धनंजय उपप्राण से। तो ये किस लिए आती है? जो धनंजय जो प्राण है, जो अपना कार्य शुरू कर देता है, उस बॉडी को पूरा गला देता है, सड़ा देता है, उसको अपघटक कर देता है। तो ये धनंजय का कार्य है। तो इस प्रकार ये हो गए प्राण। कितने होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, और उनका क्या क्या काम होता है? अब जितनी ज्यादा हम अपने श्वास को गहरा करेंगे, धीमे करेंगे, लंबा करेंगे, उतना ही हमारे प्राणों का नियम होने लगता है। और जब प्राणों का नियम होता है तो प्राणों का विस्तार होने लगता है। और जब प्राणों का विस्तार होने लगता है तो आपकी जो सिद्धियां है, जो आपकी गहराई है, आपके सोचने की शक्ति है, आपके कार्य करने की शक्ति है, वो सब कुछ एक्सट्रीम हो जाती है, सब चेंज हो जाती है। तो हमें क्या करना है? अपने श्वास को गहरा करना है और अपने प्राणों को विस्तार करना है। अब कोई प्राणों को गहरा करने के लिए, विस्तार करने के लिए, श्वास को गहरा करने के लिए हमें करना होता है प्राणायाम। अब प्राणायाम में चार स्टेप आते हैं। ये प्राणायाम में चार स्टेप आते हैं। आप प्राणायाम की कोई भी तकनीक कीजिए, उसमें सिर्फ चार स्टेप है। कौन से? एक पूरक, पूरक पूरक प्राणायाम, दूसरा रेचक प्राणायाम, और कुंभक।
अतः कुंभक, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। ओके, श्वास लिया, अंत कुंभक किया, श्वास छोड़ा, बाह्य कुंभक किया। तो ऐसे ये 4 स्टेप है प्राणायाम के। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं पूरक। श्वास जब अंदर लेते हैं उसको लेते कहते हैं पूरक। श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रेचक। जब अंदर श्वास को होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं अंतकुंभक, और बाहर होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो ये 4 स्टेप आपके प्राणायाम के हर प्रकार में मोस्टली आते ही आते हैं। हमें करना क्या है, रेचक और पूरक के बीच में जो गैप है उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ये काम होता है प्राणायाम का। जितना हम उस गैप को धीरे 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 बढ़ाएंगे और जितना हम उस रिदम में करेंगे, लयबद्ध तरीके से करेंगे, उतना ही हमारे प्राणों का विस्तार होता जाएगा। तो हम कोई भी प्राणायाम की तकनीक यूज करें, कोई भी टेक्निक यूज करें, हम तब तक उसको अच्छे से गहराई से नहीं कर सकते जब तक हम श्वास और प्रश्वास को ठीक से लेना नहीं जानते। तो प्राणायाम क्यों करने, प्राणायाम की टेक्निक क्या है, तो वो सब तो बात की बात है। पहले तो श्वास लेना सीखे ना, पहले श्वास लेना सीखे तो हम श्वास को ठीक से लिया कैसे, तो श्वास को कैसे ठीक से लिया जाता है, श्वास को गहरे से कैसे लेते हैं, गहरे से कैसे छोड़ते हैं, उसको लयबद्ध कैसे करते हैं। जब हम श्वास को लेना छोड़ना और लयबद्ध करना सीख जाएंगे उसके बाद ही हम प्राणायाम में बहुत गहरा उतर पाएंगे। तो श्वास को लेने के लिए, सीखने के लिए हम पहले सीखना होगा योगिक श्वसन। मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, योगिक का मतलब योगी। योगी जैसे, योगी लोग जैसे सांस लेते हैं, जो हमारे संत महात्मा योगी लोग हुए हैं वो सांस कैसे लेते हैं, हमें पहले वो स्टेप सीखने होंगे। तो पहले हम सीखेंगे योगिक श्वसन। योगिक श्वसन सीखने के बाद हमारी जब श्वास प्रश्वास रिदम में आ जाएगा, थोड़ा सा लयबद्ध तरीके में आ जाएगा, थोड़ा सा लयबद्ध में थोड़ा सा आ जाएगा, उसके बाद शुरू करना है प्राणायाम। तो फिर प्राणायाम की सारी टेक्निक हम एक एक करके लाइन में एक 1 बाय 1 सीखेंगे। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे कि योगिक श्वसन क्या है और उसे कैसे करना है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओके, सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू अनम्यूट टू ऑल। आपको ये सेशन कैसे लगा, आप आप ये सेशन में क्या क्या सीख गए। अरे, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जूही जी, जूही, सर हाँ बोलिए। बहुत अच्छा था सर सेशन, और आत्मा की शुद्धि हो रही है सर। आत्मा की शुद्धि हो रही है। ओके, ओके।
मिस्टर राव जी, राव सर, आप खुद को अनम्यूट वेरी कीजिए। इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये या जरूर सीखना ही होगा, हाँ हाउ टू लर्न दिस। या यस सर, यस सर। हाँ गुरुमीत जी, गुरुमीत सिंह। हाँ जी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर यही पद्धति हम लोग से छुपाई जाती है, दुनिया को बताई नहीं गई। ये पुराने टाइम पे अपने जो आश्रम थे उसमें सिखाया जाता था। आजकल जो अंग्रेजों ने आके इसको दबा दिया। हाँ या दबा दिया। आपका बहुत बहुत थैंक्स जो आपने इसको दोबारा से हम लोगों को प्रचार करके हम लोग को सुधार रहे हो जीवन शैली। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सीखते रहिए। आप ये सेशन में आप ये एक दो दिन का नहीं, ये हमारा पाथ है। ये पाथ के ऊपर ये लाइफ टाइम करना है। और ठीक है सर। अभी अभी पहले कैसे ब्रीदिंग लेना है, ब्रीदिंग कैसे लेना है, वो हमें सीखना है। ठीक है जी। बहुत से सारे हम गुस्सा क्यों होते हैं? हमारा ब्रीदिंग शॉलो ब्रीदिंग होता है। कहीं भी मन के विरुद्ध कोई भी चीज जाती है, हमें गुस्सा आता है। क्यों आता है? आप ऊपर के ऊपर सांस ले रहे हैं। अगर आपकी सांस का अगर अच्छी तरह नियम करेंगे, जैसे जैसे आपका जो उंगल है, जो आपकी आपकी जो इनहेलिंग एक्सेलिंग, जैसे जैसे आपका जो उंगल है, वो जो आपका जो ब्रीदिंग है, वो उंगल उंगल कम होते जाएगा, वैसे वैसे आपको सिद्धियां प्राप्त होती जाएगी। जैसे ठीक है सर। जैसे साधु लोगों के पास जैसे सीधा ये कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है सिद्धियां प्राप्त होती। ये तो सिद्धियां जो प्राप्त होते हैं, ये जो ये अलग है। ये जो, लेकिन अपना जो बहुत ये गुड। मकसद नहीं है अपना। ये जो ब्रीदिंग, ये जो अपना जो क्रिया योगा का ये मतलब नहीं है। क्रिया योगा का मतलब ये मोक्ष, मोक्ष के प्रति जाना। वापस हमें इस अर्थ प्लेनेट में वापस नहीं आना है। ठीक मैं है सर। चाहता हूं वापस ये अर्थ प्लेनेट में जितना भी अपना जो कर्म है, जितना भी अपना जो चक्र है, 7 चक्र, मेन 7 चक्र, 147 माइक्रो चक्र, ये सारे क्लीन करने। हर एक कर्म के अंदर वो सब चक्र आते हैं। वो जो माइक्रो चक्र, हर एक माइक्रो चक्र में एक अलग है। जैसे आप कर्म क्लियर करते जाएंगे, वैसा वैसे वैसे चक्र आप खुलते जाएंगे। सारे चक्र खुल गए तो आपका मोक्ष हो गया। ओके, आपका बहुत समय लिया मैंने आपका, तो इसी के साथ मैं घोषित करता हूँ आज का सेशन हम यहाँ कल प्ले होगा ना, हमने टाइम से टाइम वेस्ट टाइम कल प्ले होगा ना, లేవా లేవుగా కందిపప్పు మీద నీళ్ళు పప్పును ఏదైనా కూర చేసి Thank you very పెట్టుకొని much. స్పీడ్